ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے محلہ کھالےپار میں مسلم سماج کے ذمہ داروں کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل تجویز پاس کی گئی۔ میٹنگ کی صدارت مفتی ذوالفقار علی قاسمی اور نظامت قاری محمد خالد بشیر قاسمی بانی شاہ اسلامک لائبریری نے کی۔ اس میٹنگ میں شہر و ضلع کے سبھی لوگ، خاص طور سے مسلم معاشرے سے اپیل کی گئی کہ ملک میں کسی بھی طرح کے دہشت گردی کے واقعات کی ہر سطح پر مذمت کرتے ہوئے اپنے وطن بھارت کے ساتھ قومی یکجہتی بنا کر رکھیں۔ لوگوں سے یہ اپیل کی گئی کہ آئندہ بقرعید کے موقع پر شہر و ضلع میں کسی بھی پابندی شدہ جانور کی قربانی نہ کریں اور ہمیشہ سے روایتی قربانی کو اس طریقے سے کریں کہ کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس طرح سے مسلم سماج گوکشی کرنے والے جرائم پیشہ لوگوں سے بھی دور رہیں، معاشرے میں تعلیم کو فروغ دیں اور ہونہار بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ملک کے سبھی رہنے والے لوگوں کو ایک کنبہ مانتے ہوئے سبھی کی بیٹی اور بہن کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اور سبھی مذہب سماج میں ایسے واقعات ہونے سے روکنے کی کوششیں کریں جس سے سماج کی بدنامی اور فساد برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ دیکھیے خاص خبر۔ اسلام نے ہمیں سب کو سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ دی ہے اتحاد اور اتفاق۔ اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ اسلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ سختیوں کے اندر، ہمیشہ آج یہ حالات ہمیشہ اسلام کی بشارت اسلام ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے اندر جو مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ چاہے وہ اسلامی سلطنت رہی ہو، ہمارے ملک کو بنانے کا، سنوارنے کا کام کیا، اس کے بعد انگریز حکومت آئی، سب سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانیاں اگر کسی نے دی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے تو مسلمانوں نے دی ہے۔ آزادی کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے بھی مسلمان قربانیاں دے رہا ہے۔ چاہے وہ ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہو، چاہے ہندوستان کی سالمیت کا مسئلہ ہو۔ ابھی ہمارے ملک کے سامنے ایک چیلنج آیا تو کرنل صوفیہ بن کر ایک مسلم بیٹی نے سب سے آگے بڑھی اور ملک کے لیے اپنی خدمات پیش۔ جب ملک کی سالمیت کے سامنے چیلنج ہوا تو چاہے بریگیڈیئر عثمان بن کر، چاہے ویر عبدالحمید بن کر، چاہے اب کرنل صوفیہ قریشی بن کر، مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کا کام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مسلمان کسی میدان میں پیچھے نہیں، لیکن مسلمان اگر پیچھے ہے تو آپسی اتحاد کے اندر پیچھے، اپنی صفوں کے اندر سے انتشار دور کیجیے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قوم تعلیم کے میدان کے اندر سب سے آگے آئے۔ جس طریقے سے ہم نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہماری آخرت بھی اچھی ہو تو ہماری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور دنیا کب اچھی ہوگی؟ جب ہمارے پاس بہترین تعلیم ہو۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیم کے بھی پیکر ہوں، اور عصری تعلیم کے لیے ہمارے پاس آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہمیں قوموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے تو جدید تعلیم کے میدان کے اندر بھی ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले प्रोग्राम तो ये था कि आप तमाम हज़रात को ज़हमत दें और आप तमाम हज़रात घर पर आकर एक वक्त का खाना हमारे साथ खा लें, ताकि आपके आने से घर के अंदर बरकतें आएँ और प्यार और मोहब्बत में इजाफा हो और सब छोटे बड़े बैठें, क्योंकि वक्त और हालात इस तरह के हैं कि हर आदमी टेंशन में है। मुल्क के हालात, शहर के हालात, सूबे के हालात इस तरह के हैं कि खबरें इस तरह की चल रही थी, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो मशवरा ये हो रहा था कि भाई सब लोग बैठें और बैठ कर खाना खाएँ, कोई दिलो दिमाग को तसल्ली मिले, सुकून मिले। तो इतना ही प्रोग्राम था, लेकिन उसमें हमारे करम फरमा जनाब महबूब आलम एडवोकेट साहब, उनको जब मालूम हुआ, मैंने बुलवाया कि वकील साहब ज़रा से आ जाओ घर और खाने का प्रोग्राम रख रहे हैं। तो वकील साहब की राय ये बनी कि जब सब छोटे बड़े ज़िम्मेदार लोग आएंगे तो उसमें एक दो बात ऐसी भी ऐड हो जानी चाहिए कि जो माशरे के लिए एक पैगाम और एक मैसेज हो। और मैंने कहा कि आप जैसा बेहतर समझें, क्योंकि आपको हालात का ज़्यादा इल्म है और आप हमेशा से फील्ड में हैं और तमाम नशेब व फराज मुल्क में और सूबे में और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जिस आदमी की सारी ज़िंदगी कचहरी में गुजर गई हो, उसको तो पहले बात हो जानी चाहिए कि जो सबके लिए एक मैसेज का ज़रिया बने। तो वकील साहब ने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसको आज हम सब आप सब बड़ों के बीच में रखकर पूरे माशरे को एक पैगाम, एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो पहले वकील साहब वो चीज़ रखेंगे, उसके बाद उस पर ही हज़रत मुफ्ती साहब उसकी वज़ाहत फरमाएंगे और बस खाना हो जाएगा। आप सबकी इजाज़त है। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ थोड़ा सा कि हमारे दरमियान में अमीर हमजा मस्जिद के इमाम साहब हज़रत मौलाना क़ादी ग़ुफ़रान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और साबिक़ हमारे सभासद नौशाद मेंबर साहब हाजी गुलजार साहब और सभासद भाई सत्तार साहब, हाजी सरफराज खां साहब, मास्टर अख्तर खां साहब, भाई जान मोहम्मद साहब एडवाई नगर से, अमीर हमजा मस्जिद के मुतवल्ली जनाब अनीस साहब हमारे तशरीफ़ फरमा हैं, कारी शौकत साहब इमाम मस्जिद मौला बख्श यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे पहलवान साहब मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, एडवाई नगर के ज़िम्मेदार हैं, मौलाना अलाउद्दीन साहब मस्जिद उमर फारूक के साबिक़ इमाम हैं और हमारे ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह से भाई उस्मान साहब मस्जिद उमर फारूक के मुतवल्ली हैं और इसी तरह भाई फिरोज साहब हैं, भाई आफाक साहब। और फ़ोन किया हमने भाई पप्पू को, हालांकि कहीं आना जाना नहीं हो रहा, तबीयत कमज़ोर चल रही है, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि बैठक में सब लोग बैठेंगे, कहने लगे मैं तो आधा ठीक हो गया और खुद चल के माशाल्लाह आ गए। हाफिज़ हुज़ैफा हमारे एडवाई नगर से वो भी आ गए हैं। हमारे दरमियान में मौलाना इशारत साहब हैं, 7 साला में जिनके सर पर बुजुर्गों के हाथ से पगड़ी बंधी थी। 100 साला जो इजलास हुआ था ताल्लुम देवबंद के, हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और हाजी इनायत हम सब जानते हैं माशाल्लाह पूरी बिरादरी के हमारे ज़िले के ज़िम्मेदारों में हैं। हमारे हज़रत मौलाना बाकर साहब, अल्लामा बाकर साहब जोली से तशरीफ़ फरमा हुए हैं, अब्बूपुरा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं आप, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। दीगर उलमा भी अभी आने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो हम तमाम अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हैं। पीछे भी हमारे मामू बैठे हुए हैं, मामू के बेटे बैठे हुए हैं, हमारे भतीजे हमारे चचा बैठे हुए हैं और इसी तरह से सुहेल खान जो मीडिया से हैं वो भी हैं और दीगर हमारे दोस्त मीडिया के अभी पहुंचने वाले हैं। तो इस मौके पर असलन तो यही है कि हम आपके साथ बैठकर खाना चाह रहे थे ताकि दिल हल्का हो जाए और हालात का जो जहनों पर एक असर है वो थोड़ा सा ज़ाहिर हो जाए है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे वकील साहब ने इसमें वक्त और हालात के एतबार से और आज के बैठने को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना के लिए ऐड कर दी हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा अभी जनाब महबूब आलम एडवोकेट साहब से कि वो जो पॉइंट आपने नोट किए हैं वो आज सब हज़रात के सामने आ
कटघरे में ना रखा जाए। ये 3-4 बिंदु है। एक है भाई, इन हालात से मुकाबला रेडी हो सकता है जब हमारे बच्चे तालीम में आगे बढ़ें, और हम उन बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। मुफ्ती साहब सुबह ही में पढ़ रहा था, एक कोई कुरैशी है, अजब कुरैशी, वो अमेरिका के पहले जज बने हैं। माशाल्लाह। इतिहास में अमेरिका के पहले जज अजब कुरैशी, या कुछ और नाम, तो वो पहली बार अमेरिका की अदालतों में जज बने। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के बैठने से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। पर आज ये 3-4 परस्तों मुफ्ती साहब नगर लगे, आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तारीफ करेंगे। हम इसकी तारीफ करते हैं। आप इसकी तारीफ करेंगे और आइंदा इसी तरह हम शाह इस्लामिक लाइब्रेरी लोहिया बाजार में बैठे। आज ही अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग हाजी बशीर साहब के खाने से आज भी इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये भी अपील करूँगा कि आने वाले वक्त में जब कभी भी इस तरह के मामला हो, कोई भी जज्बाती नारे या जज्बाती बातें मत कहो। कारी मोहम्मद खालिद, संस्थापक शाह इस्लामिक अकेडमी मुजफ्फरनगर। मुस्लिम समाज की एक मीटिंग ली गई है, इस तरह की मीटिंग की किस तरह के मुआहदे पास किए गए इसके? शहर मुजफ्फरनगर के खालापार में पूरे शहर के मुस्लिम समाज के बहुत ही अहम जिम्मेदार दानिश्वर लोगों की अहम मीटिंग, अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ आज यहाँ, जिसमें मुल्क के, देश के मौजूदा हालात में कई अहम बातों पर गौर व फिक्र हुआ है, कई मुद्दे ज़ेर बहस आए हैं और पूरी पंचायत ने, पूरी मीटिंग ने कई अहम फैसले लिए हैं। उसमें सबसे अहम प्रस्ताव तजवीज़ जो पास हुई है वो यह है कि देश में जो उग्रवाद की घटनाएं घटी हैं, ख़ास तौर पर पहलगाम कश्मीर में जो बहुत बड़ी उग्रवादियों की तरफ से एक घटना घटी है और कत्लेआम बेगुनाहों का किया गया है, उसकी हमने समस्त मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है और ये फैसला लिया है कि समस्त मुस्लिम समाज किसी भी शक्ल में उग्रवाद को न कबूल करेगा, न स्वीकार करेगा, बल्कि कंडम करता है, मुस्तरद करता है। और जो उग्रवाद है वो देश के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी और इस्लाम के लिए भी एक दाग है। हम ऐसे हालात में अपने देश के साथ हैं और देश की पूरी जनता उग्रवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। जी, दूसरा फैसला हमने ये किया है, ये निर्णय लिया गया है कि समस्त भारतीय समाज एक कुनबे की तरह है। वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब भारतीय हैं और उनकी बहन बेटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सबकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों की, तमाम जाति बिरादरियों की लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बेटियों की इज्जत और सम्मान की हिफाजत करें और इस तरह की घटनाएं न घटने दें जिससे समाज तकसीम हो, जिससे समाज में आग लगे, जिससे लोगों की इज्जत दांव पर लगे, जिससे बेटियों की सम्मान को ठेस पहुंचे। टीम भी तश्कील की गई है। यहाँ आखिर में 21 सदस्यता कमेटी बनाई गई है। जो हमने आज जो निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, उस पर हमें समाज को कैसे बेदार करना है, कैसे एकजुट करना है, सभी समाज के लोगों को, सभी बिरादरियों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ मिलकर लेकर चलना है ताकि देश के एकता की भी लड़ाई लड़ सकें और बेटियों के सम्मान की भी लड़ाई लड़ सकें और हम कौम के अंदर एक बेदारी ला सकें। नारेबाजी करते हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जैसे ये नारेबाजी चलती है? हम ऐसे नादानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी नादानी को छोड़ दें। इस देश का सम्मान हर एक व्यक्ति का सम्मान है। इस देश की हिफाजत और सुरक्षा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। एक सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। कोई अगर नारे लगाता है, कोई अगर पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम खास तौर पर युवाओं को तंबीह करते हैं कि इस तरह की हरकत, इस तरह की नादानी हरगिज ना करें।
ہم اور ہمارے بڑے اسلاف بزرگ اسی دیش میں پیدا ہوئے، اسی دیش کے لیے قربانیاں دی، سیوائیں کری، اور ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانی دینی ہے، سیوا کرنی ہے، اور پورے سماج کو ایک جٹ ہو کر آگے لے کر چلنا ہے دیش کو۔ کرنل صوفیہ کے تعلق سے جو ایک منتری نے بیان دیا ہے، جس پر سارا ملک جس کی نندا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے سارے ملک کو افسوس ہے، دیش کا ہر ایک ویکتی اس کی نندا اور مذمت کر رہا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، کرنل صوفیہ قریشی ایک ویکتی یا ایک بیٹی یا ایک وشیش دھرم یا جاتی سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں کرنل صوفیہ بھارت کے ایک ایسا چہرہ ہے جس نے اگرواد کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور اگرواد کو اس کے گھر میں جا کر مارا ہے۔ کرنل صوفیہ کا سمان پورے دیش کا سمان ہے۔ ہم نے یہ آہوان کیا ہے کہ ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں ایک کرنل صوفیہ پیدا ہو، تاکہ دیش کے لیے لڑ سکے اور دیش کا سر بلند کر سکے عزت سے اور حفاظت کر سکے۔ بہت